Hello students, this is GS Bajaj, a representative of Shivjyoti Educational Group. How are you all? I hope you all are doing very well. Today in this video we are going to start the revision of chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. In this video we will try to cover electrostatic potential, equipotential surfaces, potential energy, capacitance and the parallel plate capacitor. Before starting the chapter, you have to take out your NCERT physics part 1, take out the page number 51 and we will discuss about potential difference. First of all we will discuss about potential difference. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट. सपोज कीजिए एक पॉइंट ए, वहां से क्यू नॉट चार्ज को बी पे ले जाया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए. अगर ए से बी पे ले जाया जा रहा है तो फॉर्मूला होगा वी बी माइनस वी ए, और अगर बी से ए पे ले जाया जाए, बी पॉइंट से ए पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी ए माइनस वी बी. अभी ए से बी पे ले जाया जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज. द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. वोल्टमीटर measures the potential difference between 2 points. The resistance of the voltmeter is high and the ideal resistance of the voltmeter is infinite. Let's understand it by taking one example. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए ए पे कितना वोल्ट है? -10 वोल्ट. अब ए से बी पे ले जाया जा रहा है तो वर्क डन कितना हो रहा है? 100 जूल. ए से बी पे ले जाया जा रहा है, ए पे कितना वोल्ट है? -10 वोल्ट. वर्क डन कितना है? 100 जूल. और 4 कूलम चार्जेस को लेके जा रहा है. 4 कूलम चार्जेस को ए से बी पे ले जाया जा रहा है. वर्क डन कितना है? 100 जूल. ए पे पोटेंशियल कितना है? -10 वोल्ट. और आपको वी बी फाइंड करना है. आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए से बी पे जाया जा रहा है अगर, तो फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए. तो वी ए की जगह क्या लिखेंगे हम? -10. ए का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना है? -10. वर्क डन कितना हो रहा है? 100. चार्ज कितना है? 4. तो आप सॉल्व करेंगे. 100 अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 25. माइनस माइनस प्लस 10. प्लस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10. सो इट विल बी 15 वोल्ट. तो बी पे पोटेंशियल कितना हो गया? 15 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स. इट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. Voltmeter is connected in parallel and the resistance of voltmeter is high and ideal resistance of voltmeter is infinite. Now let me discuss about potential. We have discussed about potential difference. Now we will discuss about potential. The work done to move a unit charge from infinity to one point in electric field. The work done to move a unit charge from infinity to a point in electric field against the force of electric field, it is called potential. The formula of potential is work done upon charge and the unit of potential is volt. Clear?
So it is also denoted by V equals to W upon Q naught. The SI unit of potential is volt. Another unit is joule per coulomb. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. इट मीन्स यू आर टू डिफाइन 1 volt. So 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. When 1 joule work is done, to move 1 coulomb charge from infinity to 1 point in electric field against the force of electric field, then potential is 1 volt. I hope you have understood very well. Now let me discuss about potential due to point charge. Potential due to point charge. It is given by V equals to KQ upon R. Potential due to point charge कितना होगा? KQ upon R. This is the potential due to point charge. Okay. You know electric field. Electric field due to point charge is KQ upon R square. Electric field due to point charge कितना होता है? KQ upon R square. Now we'll find the relation between potential and electric field. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Clear? So when we divide second equation from first, so we'll get E equals to V upon R. When you divide these two equations, you will get E equals to V upon R. The potential due to dipole at equatorial point. You know very well dipole. One is minus Q charge, another is plus Q charge, and their separation is 2a. अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल, इस पॉइंट पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट. क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट. क्लियर? सो वी आर टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है. आपको सिंपल सी टर्म याद रखनी है. इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0. मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया जाए आपको कि डायपोल गिवन है, आपको उनका सेपरेशन भी गिवन है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, डिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए पोटेंशियल कितना होगा? 0. नो नीड टू सॉल्व. इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0. कैसे होता है देखना. ये डिस्टेंस कितनी होगी? सपोज ये डिस्टेंस a है, ये r डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ये डिस्टेंस भी सेम होगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/2. माइनस q, इसको हम पॉइंट चार्ज मानते हैं, तो माइनस q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? माइनस कितना होगा? माइनस KQ अपॉन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? KQ अपॉन R. R की जगह कितना आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में, मीन्स पावर 1/2 प्लस Q KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2. नेट पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, एल्जेब्रिक सम करेंगे. वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू, सेम वैल्यू है बट इट इज इन नेगेटिव,
So you will get potential is 0 at the equatorial point. Equatorial point पे potential कितना होता है? 0. So I hope you have understood this topic. Axial point पे कितना होता है? Kp upon r square if dipole is short. Axial point कितना होता है? Kp upon r square. Equatorial पे कितना होता है? 0. Potential due to dipole at any general point. At any जनरल पॉइंट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? के पी. पी क्या है? डायपोल मोमेंट कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट इट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. एक्शियल पॉइंट पे निकालते हैं हम. यहां से एक्शियल पॉइंट पे निकालते हैं हम. एक्शियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है? 0 डिग्री. कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो एक्शियल पॉइंट पे डायपोल कितना आ जाएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर. एक्शियल पॉइंट पे. इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है? 90 डिग्री. इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना होता है? 90 डिग्री. तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0. तो अभी हमने डिस्कस किया था इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0. जनरल फॉर्मूला क्या है? Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. Now we are going to discuss about potential energy. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? Potential energy of 2 point charges. इसका फॉर्मूला होगा U. Potential energy is denoted by U. फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. 2 पॉइंट चार्जेस को असेंबल करना है एक साथ, तो वर्क डन जो होगा वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. और फॉर्मूला क्या है उसका? U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R. क्लियर? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सपोज देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस. अगर 3 पॉइंट चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 upon R13. This is the potential energy for assembling 3 point charges. 1 2 है तो यहां पे 1 2 आ जाएगा. 2 3 है तो 2 3. 1 2 क्या है? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस. R23 क्या है? Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस. R13 क्या है? It is the distance between Q1 and Q3. So the potential energy of 3 point charges is given by KQ1 Q2 upon R12 plus KQ2 Q3 upon R23 plus KQ1 Q3 upon R13. Now we will discuss about potential energy of 2 point charges when they are brought in external electric field. In external electric field. 2 चार्जेस को लेके आना है एक्सटर्नल फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? Q1V. पहले आप Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो Q1V R1. Q1 को अगर R1 डिस्टेंस पे ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी Q1V
एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा लगाया गया पोटेंशियल है V। यहां पे V क्या है? एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा लगाया गया पोटेंशियल प्लस Q2 V, एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा लगाया गया पोटेंशियल एट पॉइंट Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charges when they are brought in external electric field, जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? Q1V प्लस Q2V प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charges in external field. I hope you have understood very well. Now I am going to discuss about conductors and insulators. What are conductors and what are insulators? कंडक्टर्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें चार्जेस का मूवमेंट होता है। कंडक्टर्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं देयर विल बी फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस। एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा। These are the conductors. Insulators. Insulators you can understand by taking the example of duster. It is made up of wood. जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, when electric field is applied, there will not be any movement of charges. क्या charges का movement होगा क्या? No. So insulators where there is no movement of charge. Example wood, diamond, plastic, distilled water, etc. So these are the conductors and insulators. Conductors in which charge can flow easily, insulators in which charge does not flow. Now I am going to discuss about equipotential surface. Equipotential surfaces. Equipotential surfaces ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। Equipotential surfaces means value of potential is same at every point. Now let me discuss about the properties of equipotential surfaces. No work is done to move charge ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करोगे तो वर्क डन कितना होगा? 0। किसी चार्ज को, इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि मान लीजिए एक 2 कूलम का चार्ज है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराया गया है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो वर्क डन कैलकुलेट करो। नो नीड टू कैलकुलेट, इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कितना होता है? 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम में आता है क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो सरफेस के अलोंग कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो वर्क डन करना पड़ेगा। जबकि आप जानते हो वर्क डन
0 होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई ना कोई कंपोनेंट होगा सरफेस के अलोंग, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, तो वर्क डन करना पड़ेगा, बट यू नो द वर्क डन इज 0, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होगी, वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, कहां पे होंगी ये पास पास, वेयर स्ट्रॉन्ग फील्ड इज प्रेजेंट। जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होगी, मींस दे आर क्लोजर। और दूर कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। पास पास में कहां होगी, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। दूर कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, नो वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में है वहां पे स्ट्रांग फील्ड है, जहां पे दूर है वहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्थ पॉइंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वाई? क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वैल्यू तो एक ही पॉसिबल है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोर्ड क्वेश्चन इज वाई? Because at the intersecting point there will be two values of potential, which is not possible. So these are the properties of equipotential surfaces. Now let me draw equipotential surfaces for point charge. Suppose this is the positive point charge. Equipotential surfaces जहां पे potential की value same होती है, ये point charge है, potential due to point charge is kq upon r। तो जो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी यहां पे भी वही होगी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर मान लो यहां पे 2 वोल्ट है तो यहां पे कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा, बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ऐसे कई सारी सरफेसेस बना सकते हैं आप ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल, अंदर भी बना सकते हैं आप। दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यहां पे सेम होगी, ए और बी पे सेम होगी। लेकिन अगर आप सी पे जाओगे तो अलग हो जाएगी। सी डी ई एफ, जो सी पे होगी पोटेंशियल की वैल्यू वो डी पे होगी, ई पे होगी, और वही वैल्यू क्या होगी, एफ पे होगी। लेकिन ए पे जो है वो अलग होगी सी से, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दिस इज द पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप नेगेटिव के लिए भी बना सकते हैं। आप जब हमने पॉजिटिव के लिए बनाया था तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल्स। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बाहर की तरफ, क्लियर। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आ जाए तो यहां पे आप नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ।
these lines are of electric field and these are equipotential surfaces. Clear? अब मैं बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल. डाइपोल के लिए, डाइपोल में आप जानते हो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. क्लियर? आप देखिए पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा ये, तो सेम डायरेक्शन में होंगे. सेम डायरेक्शन होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो अंदर की तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होगी. बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी. तो आप इस तरीके से बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. अंदर स्ट्रॉन्ग है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में. इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर दोनों सेम चार्ज होते तो अंदर दूर दूर होती और बाहर पास पास में. सो दीज आर अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. Now let me discuss about behavior of conductor in electric field. अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लीजिए कंडक्टर है, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. कंडक्टर का जितना भी चार्ज होगा वो सरफेस पे चला जाएगा, तो अंदर चार्ज जीरो. पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. ये कंडक्टर है, मान लीजिए हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर भी उतना इंड्यूस हो जाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेंज लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो. चार्ज किधर चले जाएंगे? सरफेस पे, तो चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो. पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा? जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के. ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कंडक्टर के अंदर जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस के. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, मीन्स वनिश हो जाएगा. तो इट विल बी हेल्प इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वनिश हो जाए, जैसे आप कार में बैठे और कार के बाहर करंट आ रहा है, तो आप चाहते हैं अंदर करंट ना आए, तो उसके लिए आप बॉडी किसकी बनाओगे? कंडक्टर की. और उसको कैसे बनाओगे? होलो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. क्लियर? सो इट हेल्प्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. किसमें हेल्प करता है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए हेल्पफुल है. Now I am going to discuss about potential energy of dipole, and dipole is placed in uniform electric field. Potential energy of dipole. Potential energy of
डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज गिवन बाय U इक्वल्स टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. डायपोल थीटा 1 एंगल पे है, जब वो थीटा 1 से थीटा 2 पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. मान लीजिए इनिशियली वो 90 डिग्री पे है, तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0. ये टर्म कितनी होगी? 0. तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बचेगा? माइनस P cos थीटा. थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा. So when dipole is placed in uniform electric field, then potential energy is given by P cos theta 1 minus cos theta 2. Initially 90 डिग्री पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस P cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं P cos थीटा को. So it will be P vector dot E vector. Potential energy is given by minus P vector dot E vector. डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट केसेस. दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू नो, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P cos थीटा. So there are 3 conditions. First condition is stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा. तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री. जब उसको कहां तक ले जाया जा रहा है? 0 डिग्री तक. तो U का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? थीटा इज 0 cos 0 1, सो इट विल बी माइनस P. एनर्जी होगी मिनिमम. एनर्जी क्या होगी? मिनिमम. तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मिनिमम एनर्जी कब होती है? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री. और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा? माइनस P. उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस P, इट विल बी मिनिमम. सेकंड केस विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा कितना है? 180 डिग्री. U इक्वल्स टू माइनस P. थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 180. आपको याद रखना है अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री हो. स्टेबल कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो. और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम. U इक्वल्स टू माइनस P cos 180. थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. cos 180 की वैल्यू -1. पोटेंशियल एनर्जी विल बी P विच इज मैक्सिमम. तो ये क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम कब होगी? when theta is equals to 180 डिग्री, और you can say pi. मैक्सिमम कितनी होगी? P. और इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल कब होगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा. पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम विच इज इक्वल्स टू माइनस P. अनस्टेबल जब थीटा 180 डिग्री हो और पाई हो. पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू P. नाउ लेट मी डिस्कस थर्ड केस. Third case, when theta equals to 90, then potential energy will be 0. Okay, this one is the third case when theta equals to 90 degree. तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, स्टेबल, अनस्टेबल. स्टेबल कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो. अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री हो. थीटा 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा.